Hello doctors and parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session we're gonna discuss about the NEET PG 2023 All India Round 2 latest update. The choice filling has not been begun, but your registration has already been begun. Yesterday they have already, in this video we're gonna discuss about the seat matrix, possibilities of seat increment, what can be the expected shift in your NEET PG 2023 All India Round 2, as well as we're gonna discuss about some major points or the major findouts which has been done on the behalf of the list of joining candidates, that exactly how many candidates have joined the seat in all the branches, what are the possibilities and how many approximately seats will be coming for your All India Round 2, and especially if you're looking for a management or NRI seat, then how to proceed for it or what are the possibilities you are having till now, and especially if you are getting eligible after this revised cutoff and you think that you can make an NRI document and get a higher clinical branches, then what are the possibilities for you? In this session we're going to discuss about those things. बिफोर डेट अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया भी ज्वाइन करके रखें, बिकॉज वॉट एवर द लेटेस्ट अपडेट, द इन्फॉर्मेशन, द पीडीएफ्स वी आर कॉन्टिन्यूसली पोस्टिंग देयर, एज वेल एज वी आर टेकिंग डिस्कशन ऑल्सो. तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम वहाँ पे ऑलरेडी आंसर कर रहे हैं. क्या अपग्रेडेशन के रूल हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ऑल इंडिया, 50% स्टेट्स के क्या रूल हैं अपग्रेडेशन के, तमाम चीज़ों पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है. We have already made the each and every video regarding your upgradation, the choice filling and everything if you haven't watched it. And if you are applying freshly in your All India Round 2, then how to do your registration, how to change your category and everything. We have already posted a demo video for registration also. अगर आपने नहीं देखा है तो देख के आप चॉइस फिलिंग और बाकी चीज़ें कर सकते हो. बात करूं अगर मैं, इफ यू गोना डिस्कस अबाउट द सीट मैट्रिक्स, इट इज एक्सपेक्टेड by tomorrow, by today late evening or by tomorrow afternoon, your seat matrix will be there, and after that your choice filling will be begin. But yesterday MCC has published a notification as well as the PDF. In that they have mentioned the candidates who have joined their All India Round 1 seat as well as they have went for the upgradation. In that PDF it didn't haven't mentioned that it's a list of only joined candidates or those who have went for the upgradation also. But on the behalf of that list, if I talk about, in your All India Round 1, approximately 24,000 seats are there, including your NB diploma, DNB diploma, DNB seats, MDMS 50%, as well as your DMD यूनिवर्सिटी सीट्स. ऑलमोस्ट आपके 24,000 सीटें हैं ऑल इंडिया के अंदर. सारे ब्रांचेस, सारे कैटेगरीज और सारे इंस्टीट्यूट्स को मिला दें, इंक्लूडिंग योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल्सो, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास की सीटें हैं. राउंड 1 में आपके अप्रॉक्सीमेटली, इन राउंड 1 अप्रॉक्सीमेटली 22,506 seats has been allotted for your All India Round 1. Out of that 1500 ऐसी सीटें थी ऑल इंडिया राउंड 1 में जो आपको अलॉट नहीं की गई थी. मेजर ये आपके क्लिनिकल लोअर क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल ही सीटें रही थी. बात करूं अगर मैं यहाँ पे अलॉटमेंट की, तो अगर मैं ब्रांच वाइज बात करूं इससे पहले, ऑलमोस्ट आपके 22,506 आपकी सीटें अलॉटमेंट हुई थी. आउट ऑफ दैट अगर मैं पहले सेपरेट वाइज बाद में बात करूंगा, ऑलमोस्ट 10,416 seats has been joined in your All India Round 1. Yes, 22,000 आपकी सीटें अलॉट हुई थी ऑल इंडिया, 22,506 सीटें आपकी ऑल इंडिया राउंड 1 में अलॉट हुई थी. कल की जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग आपके ऑलमोस्ट 10,416 सीट्स आपकी ऑलरेडी ज्वाइंड है. इसमें से मोस्टली आपके ज्वाइन एंड अपग्रेड के भी कैंडिडेट्स होंगे. अगर इसको हम थोड़ा और बाइफरगेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली इस बार की जो सबसे डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है, विच इज़ टोटली न्यू टू एवरीवन, अगर आप सीट मैट्रिक्स या अलॉटमेंट या ज्वाइनिंग की लिस्ट चेक करोगे, इट्स वेरी डिफरेंट टू सी पीपल आर ज्वाइनिंग नॉन क्लिनिकल सीट्स ऑल्सो इन राउंड 1 इटसेल्फ. जी हाँ, ऑल इंडिया राउंड 1 में कैंडिडेट्स नॉन क्लिनिकल की भी सीटें आपकी ज्वाइन कर रहे हैं. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. एनाटॉमी 172 सीट्स हैज बीन अलॉटेड, 36 हैज ज्वाइंड. 249 pharmacology seats has been allotted, 65 people already joined the seat. 264 biochemistry seats allotted, 94 seats are joined. Microbiology 448 seats allotted, 130 candidates already joined in All India Round 1 itself. Pharmacology 353 seats allotted, 122 seats joined. Forensic medicine 226 seats allotted, 39 joined. PSM, that is community medicine, 549 seats has been allotted in your All India Round 1 and 198 seats has been already been joined. They will be going for join and upgrade also, but it has been joined in All India Round 1.
So approximately a total number of 2,261 non-clinical seats allotted in your All India Round 1, and 684 people have went and joined the seat. Whether they have went for the upgradation or not, that will be cleared after your seat matrix, because as per that virtual vacancy and everything will be clear. But this thing is very different, that exactly this much candidates are already joining the seat in non-clinical. If I talk about the DNB and diploma part, almost 4,115 seats, DNB seats has been allotted. If I talk about diploma, 1967, that is 1967 आपके डिप्लोमा की सीटें अलॉट हुई थी, that is NB डिप्लोमा की. आउट ऑफ डेट ऑलमोस्ट आपके 2,554 ऑलरेडी इन्होंने ज्वाइन कर रखा है. वहीं पर अगर मैं बात करूं डिप्लोमा की, अगर मैं बात करूं 4,154 DNB सीट्स आपकी अलॉट हुई थी, 1,967 आपकी डिप्लोमा की सीट अलॉट हुई थी, बट 1,600 सीट्स ऑलरेडी बीन ज्वाइंड, 697 सीट्स हैज बीन ज्वाइंड इन योर NB डिप्लोमा. सो ऑलमोस्ट आपके 2554, that is 2,554 seats will be available for your DNB and 1,270 seats will be available for your diploma. But the big point is that non-clinical की भी सीटें ज्वाइन हुई हैं. The thing is happening, these things are happening mostly because there is a upgradation till round 3. मतलब round 1 में आपने ज्वाइन कर लिया, आप अपग्रेड कर सकते हो. round 2 में if you got the upgradation, then you can upgrade your seat to round 3 also. If you didn't got the upgradation, you have to leave the seat of round 1, then you can apply for the round 3. But in all the cases, if you got the allotment in your All India round 2, your security amount will be forfeited. If you have to upgrade it, security deposit you have to pay again. But the major point which is here, we're gonna discuss about the deemed universities quota. Almost 3,829 seats has been allotted in your All India deemed universities. Out of that, 2,277 means 2,277 seats has been joined. तो जो डीम्ड में पॉजिटिव शिफ्ट आप देख रहे हो, you can understand that exactly how much the competition going to be here. But the major point is for your NRI seats. NRI seats is important. Reason, मैक्सिमम कैंडिडेट्स के ये माइंड में है कि राउंड 3 में NRI की सीटें मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंड इन द राउंड 3 विदाउट हैविंग ए NRI डॉक्यूमेंट उन सीटों को हम अप्लाई करके चॉइस फिलिंग करके खुद के लिए अलॉटमेंट ले सकते हैं. सो लेट मी टेल यू डेटा. ऑल इंडिया राउंड 1 में अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस NRI कन्वर्जन हैपेंड. A list is there, you can match the data. Almost 600 plus data has been there. In that All India round 1, 415 NRI seats has been allotted. Yes, 415 seats has been allotted in your All India round 1 for NRI seat, and out of that 306 people have already joined the seat. And we all know those people who are making NRI document and going for a higher clinical branches, even on the lower rank or lower score, NRI is the only option. We make the document, we make the procedure and everything. If you are joining the seat, there is very less people who are going for the upgradation also. मतलब कि 415 सीट आपकी राउंड 1 में अलॉट हुई थी, 306 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर ली है. ऑल इंडिया राउंड 2 अगेन द कन्वर्जन विल हैपन. ऑलरेडी आपके राउंड 1 में 100 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीट छोड़ दी, अलॉट हुआ था छोड़ दी. रीज़न सिंपल है, या तो बहुत महंगी फीस मिल गई होगी, या तो रेडियो डर्मा मेडिसिन गायनी पीडिया चाहिए होगा, ऑर्थो या ऑप्थोलिया लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस मिले होंगे, या तो प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिला होगा. राउंड 2 में अगेन नए कैंडिडेट्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल जस्ट 400 कैंडिडेट्स और आ जाते हैं. लास्ट ईयर राउंड 1 के ऑलरेडी 600 थे, 400 को ही सीट अलॉट हुई, 200 वहाँ पे बचे हैं, 100 छोड़ दिए, 300 हो गए, 400 और आ जाते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 700 मोर कैंडिडेट्स विल बी फॉर योर ऑल इंडिया राउंड 2. सीट्स कितनी बची हैं ये आप देखो. तो जो आप सोच के बैठे हो कि मॉपअप के बाद ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद रिवाइज कट ऑफ आएगा, डॉक्यूमेंट बना के बैठे हो कि सीट मिल जाएगी हमें, या आप ये सोच रहे थे कि वो सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा स्ट्रे राउंड में. अब क्योंकि स्ट्रे राउंड ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करके उन सीटों को ले सकते हो, जैसा कि लास्ट ईयर के अलॉटमेंट्स में आपको दिख रहे हैं कि जस्ट एलिजिबल पे भी आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिले हैं.
क्यों? क्योंकि वो एनआरआई कन्वर्टेड सीटें रहती थी और मैनेजमेंट में जाती थी। ये तब हुआ करता था जब काउंसलिंग ऑफलाइन थी। अभी अगर आपको जस्ट एलिजिबल पे हायर क्लिनिकल ब्रांचेस सोच रहे हो आप, और फिर ऑल इंडिया को ही टारगेट कर रहे हो या पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को टारगेट करके चल रहे हो, एक इंस्टीट्यूट को टारगेट करके चल रहे हो, इवन अगर एडवांस पेमेंट भी दे रखा है कॉलेज में, स्टिल द सीट वोंट बी अलॉटेड टू यू। द रीजन इज सिंपल कि स्ट्रे वैकेंसी रैंक विल बी ऑनलाइन इटसेल्फ। तो यहाँ पे ही आपकी एक्सपीरियंस काम आती है, जो बहुत लिमिटेड काउंसलर्स के पास होती है, जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि सिंस द डे वन व्हेन इट हैज बीन अनाउंस्ड that straight round will be online for your states as well as all India, we are continuously saying that branch preference है, state और कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाओ। We can allot you radio, derma, medicine, XYZ, any branch, even on the just eligible as per the rules and regulation given by Supreme Court, NMC as well as MCC। डायरेक्ट अलॉटमेंट कोई नहीं होगा। अलॉटमेंट अगर कॉलेज अपने लेवल पे डायरेक्टली कर भी देता है, inspection happen, if it is found the college can be debarred as well as the legal action will be taken on the candidate as well as their parent for supporting a illegal work। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। एंड इवन इन द नोटिफिकेशन एमसीसी सेइंग एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन, बट इट डजंट मीन जस्ट एलिजिबल हो या रिवाइज कट ऑफ के बाद भी एलिजिबल आते हो तो सीटें नहीं मिलेंगी। हायर क्लिनिकल ब्रांचेस में मिलेंगी, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। क्योंकि अगर आप राजस्थान टारगेट करके बैठे हो और कर्नाटका में चीज़ें हो सकती हैं, अब तो कर्नाटका अप्लाई नहीं की हो, कर्नाटका में मिल सकती हैं, और हो सकता है आपने राजस्थान और कर्नाटका अप्लाई कर लिया, हिमाचल प्रदेश में मिल सकती हैं, आपने नहीं किया, जम्मू एंड कश्मीर में मिल सकती हैं, आपने अप्लाई नहीं किया, बंगाल में मिल सकती हैं, वेस्ट बंगाल में मिल सकती हैं, नहीं किया, आंध्रा तेलंगाना में मिल सकता है, आपने नहीं किया, आपके हरियाणा में मिल सकता है, आपने नहीं किया, उत्तराखंड में मिल सकता है। सो इफ यू आर प्रोसीडिंग विथ योर ओन सेल्फ, मेक श्योर टू डू योर रिसर्च वेरी वेल, बिकॉज अभी तक जो पॉजिटिव शिफ्ट की चीज़ें चल रही हैं, इफ यू लुक इन द स्टेट्स थिंग, महाराष्ट्र स्टेट्स कोटा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नेगेटिव शिफ्ट हैज बीन हैपेंड। सेम थिंग गोज फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस। कुछ चीज़ों पे पॉजिटिव हुई हैं, बट मेनली फॉर द लोअर क्लिनिकल ब्रांचेज। हायर क्लिनिकल ब्रांचेज आज भी रेडियो, डर्मा, मेडिसिन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जिनको ये ब्रांचेज नहीं मिल रहे हैं उनको गायनी चाहिए, गायनी नहीं मिल रहा है तो ऑप्थल चाहिए, ऑप्थल नहीं मिल रहा है तो सर्जरी और ऑर्थो चाहिए। तो अगर आप ये हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो एंड यू हैव ऑलरेडी मेड अ डॉक्यूमेंट एंड यू आर थिंकिंग दैट आफ्टर रिवाइज करा वी विल अप्लाई गेट द सीट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डेटा दैट एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो इन चीज़ों से आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे आपको सीट मिल सकती है, क्योंकि अगर आप कॉलेज से मिलके बुकिंग, पेमेंट, XYZ करते हो, बिलीव मी कॉलेज के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सीट आपको नहीं मिलेगी। वॉट एवर वी आर सेइंग, वी आर ऑल्सो सेइंग कि हम आपको काउंसलिंग से ही अलॉट करा के देंगे एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ योर MCC, NMC एज वेल एज योर सुप्रीम कोर्ट। कोई इलीगल बात नहीं कर रहा हूं मैं। कैसे मिल सकता है, कैसे हो सकता है, यहाँ पे हमारी एक्सपीरियंस काम आती है, कैसे प्रोसीडिंग करनी चाहिए। इफ यू हैव अ प्रेफर्ड ब्रांच you have to compromise with your state as well as the college option, or if you have a preferred college or state option, you have to compromise with your branch. If you are agreeing in this case, you can contact me on the given number below. 1010% we can allot you the seat. How to proceed for it, how to pay the charges and everything can be discussed on the given number below. If you're looking for a paid counseling guidance, you can contact me. But what's the current situation? The current situation will be more clear after this seat matrix. But as per the joining list, these things has been cleared. So if you are watching this new, if you are new on this channel, do subscribe it. If you have any question, any inquiry, you can contact me. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आपको जानना है, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके मैसेज करके आप पूछ सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बट प्रोसीडिंग कैसे करनी है ये आपको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ NRI डॉक्यूमेंट बना लेने से इस बार सीटें नहीं मिलेंगी। बिकॉज राउंड 1 में ही ऑलमोस्ट 400 में से 300 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। इवन दे आर गोइंग फॉर अपग्रेडेशन ऑल्सो। आप भी जानते हो कि कितनी सीटें हैं, क्या हो सकता है अपग्रेड करके ये ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी, जिन्होंने भी NRI डॉक्यूमेंट बनाया, इवन अगर आपने NRI डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो यू नो यू आर वेरी श्योर टू गेट अ सीट एट एनी कॉस्ट एंड यू हैव टू ज्वाइन द सीट। तभी आपने इतनी मेहनत करके डॉक्यूमेंट रेडी किया है, अदरवाइज इट वोंट बी रिक्वायर्ड। सो कैसे प्रोसीडिंग करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है,
काउंसलिंग को कैसे अटेंड करें, इन तमाम चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी पेड काउंसलिंग एज वेल एज प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।